Guys, how are you all? I hope you all are doing really very great. I am CA Sonali and welcomes you on my YouTube channel. Guys, we have started with the CA Foundation ka account series for your January 2026 attempt, where I am covering the detailed accounting for CA Foundation level. So we completed the basics like a theory, and today we will complete our journal entry ka topic. Okay, so till now in journal entry we have seen double entry system. We used to prepare our accounting using double entry system. That is, every transaction have two aspect. One is debit and another one is a credit. Accounts में हर transaction के दो effect होंगे. I already discussed with you. Debit, what you own, मतलब right to receive the benefit, and credit, what you owe, that is obligations to pay. This all we have discussed already. I told you in accounting there is a two approach to treat the journal entry, to make the journal entries. One is your modern approach, and this approach is also called as accounting equation approach, and another one is a traditional approach. Modern approach categorize all the business in the five types only. That is, modern approach says business transaction is five types only. That is, one is a capital, liabilities, expenses, asset, revenue or sales. If you wanted to increase the capital, because capital is a liability of the business, your capital, liabilities and revenue comes under the one group, which is, if you wanted to increase it, you should do more credit, and if you wanted to decrease, you should do the debit, right? And your expenses and asset is coming under one group. That is, if you wanted to increase or if you wanted to do the expenses or assets, you should do the debit, or if you wanted to reduce it, you should do the credit. Similarly, we have seen the traditional approach of accounting. According to traditional approach of accounting, there is two types of account. One is your personal and another one is your impersonal. Personal account have three types of persons: natural, artificial and representative person. Natural person like you and me. Artificial person means law have given legally title to them as an artificial person, like your businesses, Reliance Industries, Tata Industries, bank, etc, etc. Representative person matlab, I already told you, any income or expenses in which before or after any prefix or suffix is there, then it will be called as a representative person. Coming over to impersonal account further divided into two categories: real and nominal account. Real account deal with the all asset of the business, but there are two exception of the debtors and bank, because this is coming under the person, right? And nominal account deal with the all income, gain, expenses and losses of the business, right? So the rule of your personal account is debit the receiver, credit the giver. The rule of your real account is debit what comes in, credit what goes out. And the rule of your nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains, right? Then we have seen some basic journal entries. No need to explain. Just you should focus on, if nothing is mentioned, then assume it is a cash. And if they used to mention the only name, like goods sold to Mahesh, even if they not mention on credit, even if they said goods sold to Mahesh, then you have to assume it is a credit sale, because Mahesh ka name is given. Okay. Similarly for the purchases. Then I told you the journal entry about the use of goods other than sale, for the drawings, for the advertisement, charity, fire, thefts, this all. I told you the goods purchase return ka entry and sales return ka entry. I told you that there are two types of discounted. One is a trade discount and another one is a cash discount. Trade discount used to offer when you used to purchase in the bulk, purchase in the specified quantity, purchase in the specified amount, right? So example, let's take example brand factory. They used to give always offer that buy 2 get 3 free. Or sometime the person used to give you the discount like, अगर आप 5,000 का लोगे तो 5% discount. If you purchase up to 20,000, then 10% discount. If you purchase more than 20,000, then 15% discount. That is specified discount. So this discount is never mentioned in your invoice. That is the reason
we never used to pass the trade discount ka journal entry. If in the question trade discount is given, then you have to first deduct that trade discount and then you have to calculate the billing amount, right? Coming over to cash discount, guys, cash discount is offered for early payment. Like I have given you example, the iPhone 17 rate was, let's assume, 1.75 lakh. But the shopkeeper says if you give me instant cash, it will cost you 1.65 lakh. This 10,000 is what? This 10,000 is called as a cash discount for the early payment, right? So cash discount we need to show in the invoices. So cash discount is always there in the journal entry, right? Now coming over to the GST part. For this part we have seen the multiple questions also. Now we will see the GST part. Let's start with the GST part. In India, guys, there is a two types of taxes. That is, Indian taxes used to give us two types of taxes. One is a direct tax and another one is a indirect tax. So this indirect tax means we used to pay this tax, but हमें पता नहीं होता कि हमने इसको पे कर दिया. Like whatever right now you are using, you are wearing your clothes, you might be paid GST. You are eating, drinking, fruit juices or any pulses, everything, everywhere you paid GST, but you paid this indirectly, unknowingly you paid, because GST is a tax ultimately borne by the consumer. So how this GST is come? Earlier it includes CST. Earlier in the indirect tax it includes CST, VAT, sale tax, service tax, excise duty, etc, etc. But what happened ना, इसकी वजह से tax payer and government also in the problem, because double taxation हो रहा था. On a single person there may be a multiple taxes. State used to charge different taxes, and this all is getting like hell. So क्या हुआ? Government have introduced one tax named GST, that is Goods and Service Tax. In 2017, government remove all these taxes. Like now no more CST, VAT, sale tax, service tax. This is no more. Government remove all these taxes and introduce only one tax, that is one nation, one tax, that is called as a GST, that is Goods and Service Tax, right? So what is the direct tax, guys? Direct tax is applicable on your income directly. Like you know, हमें government को देना होता है. We used to file our returns, right? So let's assume करो your earning is 100, ठीक है? Government used to come and used to say, Sonali, you are earning 100 rupees. I said yes. So you have to give us something, that is 30% of your earning. So straight away by my own hand I need to pay this 70 rupees to the government. I used to pay this tax directly to the government. So this is called as a direct tax. Okay. Now ये जो टैक्स होता है ना गाइज, डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्टली जाता है इसीलिए बहुत चुभता है, हमें बहुत दर्द होता है. बट द इनडायरेक्ट टैक्स वी यूज्ड टू पे ऑन द डेली लाइफ बट विदाउट नोइंग. लाइक हमें पता नहीं होता, इनडायरेक्टली हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं. देखो यहाँ पे आई हैव नोटेड दिस टैक्स इज पेड इनडायरेक्टली. लेट्स अज्यूम करो बिस्किट पैकेट MRP ₹10. They used to give you inclusive of all taxes, that is all indirect taxes इसमें included है. We used to pay this tax without knowing, so called as indirect tax. ठीक है? So यही indirect tax क्योंकि हर प्रोडक्ट पे लगता है, क्योंकि हर सर्विस पे लगता है, so we should know कि ये indirect tax है क्या, क्योंकि in this your CA foundation level there is a very little things about this indirect tax is there. We have to know just basic about the indirect tax, but once you reach to your CA enter, then there is a topic for this indirect taxation. ठीक है? तो अभी हमें जितना जरूरी है उतना मैं आपको बता दूंगी. In the GST there is a 3 types of GST, guys. This GST is 3 types. Okay. So first one is your CGST, name as a Central Goods and Service Tax. Another one is your SGST, or for union territories. There is a union territories, you might be know
कि अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, दीव दमन, दिस आर यूनियन टेरिटरीज. सो दे आर नॉट कॉल्ड एज अ स्टेट, दे आर कॉल्ड एज ए यूनियन टेरिटरी. तो फॉर SGST और UTGST ऑन सेम लेवल, अगर आप स्टेट में रहते हो तो इट्स ए SGST. इफ़ यू आर स्टेइंग इन एनी यूनियन टेरिटरी देन इट विल बी कॉल्ड एज ए UTGST. तो SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. एंड लास्ट वन इज योर IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. अभी देखेंगे इस GST का अप्लीकेशन कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई दिस GST. लेट्स सी, लेट्स अज्यूम करो गाइस यू आर हियर इन द हैदराबाद तेलंगाना. ठीक है, आप हो अभी हैदराबाद के तेलंगाना स्टेट में, राइट. ठीक है, तो देखो ये टैक्सेस कैसे अप्लीकेबल होते हैं तीनों भी, मुझे वो आपको बताना है. अभी हम हैदराबाद में हैं, हैदराबाद इज कमिंग अंडर द तेलंगाना स्टेट. सो इफ यू आर सेलिंग गुड्स इन द सेम स्टेट, लाइक you are selling goods from Hyderabad to Hyderabad और Hyderabad to Karimnagar in the Telangana state anywhere. ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए इंट्रा स्टेट, मतलब सेम स्टेट और विद इन द स्टेट, राइट. सो तब आपको अप्लाई करना है CGST एंड SGST बोथ. ओके, CGST एंड SGST बोथ लगाना है अगर आप सेम स्टेट में गुड्स बेचते हो तो. ओके, सो इफ यू आर सेलिंग गुड्स इन द सेम स्टेट इट विल बी कॉल्ड एज अ इंट्रा स्टेट, विद इन अ स्टेट, सेम स्टेट, एंड CGST SGST will be applicable. If you are selling goods in the different state, that is currently I am here in Hyderabad Telangana and I am selling goods from Hyderabad to Maharashtra like a Mumbai. ठीक है, so then in that case guys only IGST will be applicable. ठीक है, लेट्स अज्यूम करो तेलंगाना स्टेट में मैं सर्विसेज दे रही हूँ, कोचिंग सर्विसेज. ठीक है, सो कोचिंग सर्विसेज पे नॉर्मली GST रेट इज 18%. सो सेम स्टेट में दे रहे हो तो आप डिवाइड करोगे कैसे, CGST रहेगा @9% और SGST रहेगा @9%. ठीक है, बट वही सर्विसेज मैं कोचिंग सर्विसेज ही ऑफर कर रही हूँ फ्रॉम तेलंगाना टू मुंबई, लाइक इन द डिफरेंट स्टेट. इसको इंटर स्टेट बोलते हैं. आप याद कैसे रखोगे, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर स्टेट, सिंपल. दूसरे कास्ट में मैरिज कर रहे हो तो आप क्या बोलते हो, इंटरकास्ट मैरिज. अगर आप दूसरे स्टेट में गुड्स बेच रहे हो तो आप क्या बोलोगे, इंटर स्टेट. ठीक है, सो कोचिंग सर्विसेज आप मुंबई में दे रहे हो तो ओनली वन टैक्स विल बी अप्लीकेबल, दैट इज IGST. बट इसका डबल रेट रहेगा IGST का ऑलवेज. वाई, आई एम ऑफरिंग सेम सर्विसेज तो सेम टैक्स शुड बी कैलकुलेटेड, बस तरीका अलग है. सेम स्टेट में है तो CGST SGST लगेगा, डिफरेंट स्टेट में है तो ओनली IGST विल बी अप्लीकेबल. यही मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है. अगर IGST का रेट 12% होगा तो CGST SGST 6% होंगे. IGST का रेट 5% होगा तो SGST CGST भी 2.5% रहेंगे. दैट मीन्स रेट ऑफ IGST इज ऑलवेज डबल आउट CGST और SGST, और यू कैन से CGST प्लस SGST इज इक्वल टू IGST ऑलवेज. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. मैंने यहाँ पर बहुत ही आपको बेसिक चीज़ें बताई है टिल नाउ, जस्ट वी डिस्कस दिस मच. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. इसमें देखते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और इनपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है. नाउ वी ऑल नो दैट मिस्टर जेठालाल का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, राइट. जेठालाल जो अपना है उसका बिजनेस है किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का. नाउ जेठालाल क्या करता है पता है, सैमसंग लिमिटेड से परचेज करता है चीज़ें और अपनी कस्टमर को बेचता है. तो लेट्स अज्यूम करो जेठालाल हैव परचेज टीवी फ्रॉम सैमसंग लिमिटेड. कितने का, 50,000 का. ऑफ कोर्स क्योंकि टीवी परचेज करे तो GST लगेगा. सो GST लग गया कितना, 5,000 का. टोटल कॉस्ट हो गया 55,000. नाउ गाइज ये जेठालाल क्योंकि परचेज कर रहा है
तो जेठालाल के बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, प्लीज रिमेंबर, जेठालाल के बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं। जेठालाल ये जो गुड्स परचेस कर रहा है, दिस इज परचेसिंग फॉर फर्दर सप्लाई। जेठालाल इज नॉट अल्टीमेट कस्टमर, जेठालाल is not ultimate customer this GST, because Jetalal is selling this product to somebody else, right? So it's not Jetalal's responsibility to pay the GST, right? But since he is purchasing goods, so he should pay. That's the reason Jetalal is paying here 5,000 GST to Samsung Limited, and after that Jetalal will collect this GST from the customer whoever he is selling, right? So guys, here this goods is coming in जेठालाल बिजनेस, जेठालाल के बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहे हैं। सो जब भी हम परचेज करते हैं वी यूज टू अप्लाई इनपुट GST। आई होप दिस इज ए क्लियर गाइज। नाउ से जेठालाल's business, now Jetalal is selling, I am avoiding here profit related things because of your understanding, ठीक है। Now Jetalal is selling same TV to ताज होटल। जेठालाल क्या कर रहा है, ताज होटल को टीवी बेच रहा है। सो सेम थिंग, टीवी का कॉस्ट इज 50,000। नाउ ताज होटल इज अ कस्टमर, ताज होटल इज नॉट सेलिंग दिस टीवी टू एनीवन एल्स, ठीक है। Taj Hotel wanted to use this TV, that's the reason they have purchased this TV from Jetalal. So now guys, this is the liability belongs to the Taj Hotel because GST is ultimately borne by the customer. So this GST is ultimately borne by the Taj Hotel only, right? So now Taj Hotel को ये क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। Now Jetalal is collecting this tax from the Taj Hotel, right? जेठालाल क्या कर रहा है, ये टैक्स ताज होटल से कलेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम आउटपुट GST। आई होप दिस इज ए क्लियर गाइज। जब आप परचेस करते हो दैट टाइम इट इज़ ए इनपुट GST, एंड जब आप सेल करते हो दैट टाइम इट इज़ आउटपुट GST। This is a liability of Jetalal because Jetalal is collecting this and it is not Jetalal's money. This money belongs to whom? To government. So what Jetalal used to do? Jetalal used to collect this tax from the Taj Hotel, like from the customer, and pay this tax to the government. I hope this is a clear guys. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैंने आप अभी जो बोला है वो वापस से सुन लेना। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, for the input goods is coming in business, Jetalal's business, it is not Jetalal's responsibility to pay tax, of course, because GST is ultimately borne by the customer. Now Jetalal is paying GST and once goods sold he will take credit of that, so this will be called as a input tax credit, right? And coming over to this output, goods is going out from Jetalal's business, right? Ultimately tax will be borne by Taj Hotel because they are using goods, right? So Jetalal collect tax and pays it to the government. Jetalal क्या करेगा, collect करके government को pay करेगा, so it will be called as output tax liability. Jetalal can set up this liability by using input tax credit. I hope this is a clear guys. अभी देखो आप इनपुट कहाँ कहाँ लगाओगे और आउटपुट कहाँ कहाँ लगाओगे। हर जगह एवरीवेयर यू हैव टू कोट द इनपुट टैक्स, लाइक परचेस ऑफ फर्नीचर, एनीवेयर यू हैव टू कोट इनपुट टैक्स, ठीक है। ओनली देर आर 4 थिंग्स वेर यू हैव टू अप्लाई द आउटपुट टैक्स, दैट इज इन केस ऑफ द सेल्स एंट्री यू हैव टू पुट इट एज आउटपुट टैक्स, इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न आउटपुट टैक्स, इन केस ऑफ रिबेट आउटपुट टैक्स, एंड इन केस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, लाइक services rendered matlab I am going to give services from Hyderabad to Maharashtra, I used to render the services. So in this all 4 cases only you have to quote output tax, rest everywhere we are always quoting input tax. I hope this is a clear guys. चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी द क्वेश्चन।
Where is the questions? Yes. This is all questions, right? This all is a GST related things. Now I told you once, just read this thing, you will got to know everything about the GST. एक बार read करके छोड़ देना, मैंने जो बताया है अल्टीमेटली वही सब है, ठीक है? चलो, कम ऑन इलिस्ट्रेशन नंबर 8 गाइस. अभी मैं आपको बताऊंगी हाउ यू आर गोइंग टू पास द GST का एंट्री. ओके, आई एम नॉट मेकिंग द फॉर्मेट इज जस्ट लाइक दिस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, सिमिलर फॉर्मेट. देर इज नो एनी रॉकेट साइंस. चलो चलते हैं क्वेश्चन पे. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रोहित. ठीक है, द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर ₹50,000 प्लस CGST एंड SGST 9% ईच. फर्स्ट यू हैव टू थिंक व्हाट इज आवर नॉर्मल परचेज का एंट्री. परचेज का एंट्री क्या है, क्योंकि साहिल का नाम दिया है, दैट मीन्स दिस इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ कोर्स, राइट. So what journal entry we used to pass? We used to pass normal journal entry is कि purchase account debit, right? Purchase account debit to Sahil. अरे बताओ. Yes, this is the only entry, right? We have purchased 50,000 goods from Sahil. So how much goods costing guys? 50,000. Now देखो, इट मे बी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स. जल्दी बताना. आप बोलोगे मैडम आपने अभी अभी बताया कि दिस इज व्हाट, दिस इज योर इनपुट टैक्स, राइट. क्योंकि आपके बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, जब भी आप परचेस करते हो गुड्स आते हैं, तो यू हैव टू कोट इनपुट टैक्स. सो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST. जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते रहेंगे वैसे वैसे GST भी आएगा. लाइक परचेज डेबिट हो रहा है तो GST भी डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो GST भी क्रेडिट होगा. प्लीज़ रिमेंबर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट. प्लीज़ टेक योर कैलसी. देखो आपको कैलसी पे डालना है 50,000 इंटू 9%. यू विल गेट आंसर एज 4,500, राइट. कितना परसेंट है, 9% @ 9%. सो 4,000, 4,500, 4,500, राइट. इतना हमने साहिल से परचेस किया है. अब मुझे बताना हमें साहिल को पे कितना करना है. टोटल 59,000 एंड दिस इज व्हाट जर्नल एंट्री. इजी पीजी है, कुछ नहीं. नॉर्मल का परचेस एंट्री का डालना है, बस परचेस डेबिट हो रहा है तो GST को भी डेबिट करो, राइट. चलो आगे चलते हैं. आगे बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सैम 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. गाइज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्रेड डिस्काउंट आपके जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आता, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट पे हम GST भी कैलकुलेट नहीं करेंगे. सो व्हाट वी विल डू, विल कैलकुलेट GST आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट का वैल्यू. 20,000 वॉज पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस आफ्टर 3 months. मतलब हमने जो सैम से गुड्स परचेस किए, सैम ने क्या किया, 20,000 कैश में दे दिए, बाकी हम क्या करेंगे, सैम को अकाउंट को डाल देंगे. चलो देखते हैं. 40,000 का गुड्स परचेस किया है तो 40,000 क्या है, इस वैल्यू को बोलते हैं लिस्ट प्राइस. ठीक है, इसमें से क्या माइनस होगा, माइनस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट विच इज़ 10% है, राइट. तो 40,000 का अगर आप 10% करोगे तो इट इज़ कमिंग 4,000. अब आपको जो GST चार्ज करना है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाले वैल्यू पे करना है. 9% ईच है, तो आप क्या करोगे, 36,000 का CGST निकालो @ 9%, SGST निकालो @ 9%. कितना आता है देखो, इट इज़ कमिंग 3240, 3240. टोटल करो 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240, दिस इज 42,480. इसमें से क्या किया इसने, कैश में दिया है कितना,
20,000, मतलब रेस्ट कितना बचता है 22,480। हम क्या करेंगे, सैम के अकाउंट को डाल देंगे। आई होप दिस इज सैम ओनली, राइट। चलो जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, राइट। परचेस अकाउंट डेबिट कितने का हो गया भैया, 36,000 का, टू सैम टू कैश, कैश ऑब्लिक बैंक, कुछ भी डालो, कैश डालो या बैंक डालो, ठीक है। परचेज डेबिट हो रहा है तो जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट होगा। इनपुट CGST @ 9%, इनपुट SGST @ 9%। जो हमने कैलकुलेशंस करे उसके ऊपर आ जाओ, 3240 3240 3240 3240। कैश में कितने मिले 20,000, तो रेस्ट अमाउंट बच रहा था आपका 22,480 सैम के अकाउंट को। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर गाइज, वेरी इजी पीजी था, राइट। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 20,000, विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। सच गुड्स वेयर परचेज बाय पेइंग CGST SGST 9% ईच। आपने क्या किया है, ड्राइंग्स करे हैं, ठीक है। तो मुझे बताना, आप ड्राइंग्स करते हो तो व्हाट जर्नल एंट्री वी यूज टू पास, नॉर्मल है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, राइट गाइस। चलो परचेसेस क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, इसके साथ आपका GST भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। आई होप दिस इज अ क्लियर गाइज। देखो परचेसेस कितने के करे हैं, सॉरी गुड्स कॉस्टिंग 20,000 का आपने किया है, उस पर आपका GST कितना कितना है 9% ईच। सब लोग कैलसी हाथ में लेना, निकालो 20,000 का 9% विच इज़ 1800 1800। तो इसका टोटल कितना आता है 23,600। I hope this is clear guys. Let's move forward. Paid rent to Gagandeep for 30,000 plus CGST HGST 6% each. Because rent is our expenses, so what journal entry we normally used to pass? That rent account debit to Gagandeep, right? अरे बोलो रे, rent to Gagandeep. Now calculate the GST. CGST HGST 6% each on 30,000. So let's calculate input CGST @ 6%, input SGST @ 6%। कितना आता है, सब लोग अपना अपना कैलसी लो। 30,000 का 6% 1800। टोटल देखो 1800 प्लस 1800 प्लस 30,000 विच इज़ 33,600, राइट। सिंपल है। चलो नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, मतलब इसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न टू सैम, देखो ऊपर हमने सैम से गुड्स क्या किए थे, परचेज किए थे। कौन सी जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री 2 में, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम। अभी हम उसको रिटर्न दे रहे हैं, तो मुझे एक बात बताना, नॉर्मल क्या करोगे आप, परचेज रिटर्न वाला एंट्री करोगे, राइट। तो देखो आपका लिस्ट प्राइस क्या था गुड्स का 5,000, राइट। उसमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था इफ़ यू रिमेंबर @ 10%, तो 500 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपने सैम को गुड्स कितने के रिटर्न किए, 4,500 के गुड्स रिटर्न जा रहे, तो GST को भी लगाना पड़ेगा। हमने ऊपर GST कितना लगाया था 9% ईच, तो लगाओ CGST @ 9%, SGST @ 9%। कितना होता है देखो 4500 का 9% 405, ठीक है। और इसका टोटल बनेगा 4500 5310। चलो नॉर्मल परचेस रिटर्न की एंट्री पास करना है गाइज।
क्या करेंगे हम, जब परचेस करते हैं डेबिट करते हैं तो परचेस रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, देखो सैम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ठीक है, मैंने आपको बताया था 4 ही केसेस में इनपुट आएगा, बाकी आउटपुट आएगा, बाकी हर जगह क्या लिखोगे आप, इनपुट CGST @9% इनपुट। इसका टैक्स हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आया था आपका 405, ये था कुछ 4500, इसका टोटल हमने किया क्या, यस 5310। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, सिंपल है, बस GST का इफेक्ट आपको डालना है। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर 44,800 इंक्लूडिंग GST। ओ माई गॉड, क्या हो गया, इंक्लूडिंग GST अमाउंट गिवन है, मतलब इंक्लूडिंग GST अमाउंट गिवन है, मतलब हमें सबसे पहले GST की एंट्री पास करने के लिए एक्सक्लूडिंग GST निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है, देखो लिख लेना सब लोग। इफ वैल्यू इज गिवन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स देन यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंक्लूडिंग GST 100 प्लस GST रेट इंटू 100। चलो आता है क्या देखते हैं। हमने कितने का परचेस किया, है 44,800, GST 12% है, 12%, तो वैल्यू इंक्लूडिंग GST है 44,800, 100 प्लस GST रेट है 12 इंटू 100। इफ़ यू डू दिस कैलकुलेशन, सब लोग कैलसी पे लेना, 44,800 डिवाइडेड बाय में 112 इंटू 100 विल गॉट एक्सक्लूसिव वैल्यू विच इज़ 40,000। देयरफॉर GST कितना हुआ, 44,800 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 4,800। सिंपल, नाउ यू कैन पास द GST का एंट्री। IGST है तो एक ही टैक्स लगेगा। चलो फर्नीचर परचेस करते हो तो क्या एंट्री पास करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि कैश में परचेस किया है तो कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है, कितना होगा, फर्नीचर अभी हमने कैलकुलेट किया 40,000 का, IGST है @12% विच इज़ 4,800, 44,800 सिंपल, राइट। चलो लास्ट है परचेस मशीनरी फ्रॉम मिसेस सिम्फोनी इंडस्ट्रीज फॉर ₹1,40,000 प्लस CGST SGST 9% ईच, पेड 1 लाख इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। आपने मशीनरी परचेस करी तो एंट्री क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट GST का इफेक्ट मशीनरी बिजनेस में आ रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इनपुट लगेगा, इनपुट्स। ठीक है, चलो देखते हैं। आपने 1,40,000 की मशीन परचेस करी है तो आपका लिस्ट प्राइस क्या है गाइस, 1,40,000। ट्रेड डिस्काउंट है क्या, नहीं है। डायरेक्टली CGST SGST कैलकुलेट करो @9%, सब लोग कैलसी पे लेना है 1,40,000 इंटू 9%, 12,600। देखो टोटल कितना होता है, प्लस 1,40,000 1,65,200। ये क्या बोल रहे हैं, पेड 1 लाख इमीडिएटली, तो 1 लाख तो कैश में आए, कैश ऑब्लिक बैंक कितने आए 1 लाख। दैट मीन्स सिम्फोनी इंडस्ट्रीज से हमें क्रेडिट कितना है 65,200, राइट। चलो क्या एंट्री पास करोगे, सिंपल है, मशीनरी आ रही है बिजनेस में तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की है भैया, 1,40,000 की, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक टू सिम्फोनी, आधा क्रेडिट में है, राइट। तो देखो इनपुट हमने निकाला कितना कितना है 12,600, इसमें से कैश बैंक से कितना मिला है, तो ये मिला है 1 लाख रुपीज़। दैट मीन्स 65,200, राइट ना,
अभी भी आना बाकी है. दैट्स इट. सिंपल था गाइज, इजी पीजी क्वेश्चन है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. लेट्स स्टार्ट. इलस्ट्रेशन नंबर 9 फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल्स. अगेन आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी फॉर्मेट, यू ऑल नो फॉर्मेट. मैं बस आपको इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करना है वो बता दूँगी, ठीक है. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिसेस निधि ट्रेडर्स ऑन जुलाई 2022. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है goods sold goods for 50,000 and charge CGST HGST at the rate 6% each. I already told you if nothing is mentioned, कुछ भी mention नहीं है किसको बेचे क्या बेचे, तो we are always assume this is a cash sale. So what journal entry, generally sales का journal entry we used to pass that कि cash oblique bank account debit to sales. Let's pass the journal entry guys. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. नाउ मैंने आपको बताया था सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो इसके साथ जीएसटी भी क्रेडिट होगा. तो कौन सा जीएसटी क्रेडिट होगा भैया? आउटपुट. मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ बट आपको नहीं लिखना है, रुको. आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट SGST at the rate 6%. तो चलो हमने सेल कितने का किया? 50,000 का. यू शुड हैव अ कैलसी इन योर हैंड गाइज एंड प्लीज़ कैलकुलेट. चलो मैं भी अपने हाथ में कैलसी ले रही हूँ, गिव मी अ सेकेंड. कैलकुलेट 50,000 का 6% विच इज़ कमिंग 3,000 एंड 3,000. तो टोटल सेल हमने कितना किया? 56,000. आई होप दिस इज ए क्लियर गाइज. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सुरजीत. नाउ यहाँ पे देखो कुछ भी नथिंग इज मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं था. यहाँ पे सुरजीत का नाम मेंशन है. इसका मतलब दिस सेल इज अ क्रेडिट सेल. ओके. नाउ सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर 28,000 इंक्लूडिंग, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इंक्लूडिंग है. आर वी एबल टू कैलकुलेट द एक्सक्लूडिंग जीएसटी? मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था दैट वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है? 28,000 डिवाइडेड बाय में 100 प्लस जीएसटी रेट. नाउ यू हैव टू टेक अ कंबाइंड जीएसटी रेट लाइक अ सीजीएसटी का 6%, एचजीएसटी का 6%. सो टोटल इज अ 12% इंटू में 100. सो लेट्स कैलकुलेट गाइज. क्या करोगे? 28,000 डिवाइड 112 इंटू 100. दिस इज कमिंग 25,000, राइट. ये 25,000 आ रहा है, राइट. तो चलो लेट्स पास द जर्नल एंट्री. क्योंकि हमने सुरजीत को बेचा है तो हम पास करेंगे दैट सुरजीत्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो आउटपुट CGST at the rate 6%, आउटपुट SGST at the rate 6%, जो कितना कितना आएगा? एक मिनट. 1,500 आ रहा है, राइट. 25,000 का हमने सेल किया. 1,500 1,500 तो ये हो गया टोटल 28,000, राइट. आई होप दिस इज क्लियर गाइज. इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ध्यान देना है. रिसीव 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 28,000. देखो ऊपर हमने सुरजीत को 28,000 का सेल किया था. दैट मीन्स 28,000 is receivable from Surjit, right? But what happened? Surjit just gave us 25,200. If you take on calci 28,000 minus 25,200, it is coming as a 2,800 का difference.
This difference is called as a nothing but a cash discount. So let's pass the journal entry. We have received cash oblique bank from Surjit. How much? 25,200, राइट. हमारी बुक्स में सुरजीत का अकाउंट डेबिट हुआ है. सुरजीत का अकाउंट डेबिट हुआ है 28,000 से. सो लेट्स क्रेडिट 28,000 ताकि इसका ज़ीरो हो जाए. क्यों ज़ीरो कर रहे हैं? क्योंकि दिस इज़ इन द फुल सेटलमेंट, राइट. सो बाकी बचा कुचा क्या है? डिस्काउंट. सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट विच इज़ 2,000. मैंने कैलकुलेट किया था 800. आई होप दिस इज ए क्लियर गाइस, राइट. चलो नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000. IGST चार्ज किया है. चार्ज IGST एट द रेट 12%. रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव आफ्टर 1 मंथ. देखो क्या क्या हुआ है. वी हैव सोल्ड गुड्स. तो गुड्स की लिस्ट प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस है विच इज़ 30,000 और GST है विच इज़ IGST एट द रेट 12%. एवरीबडी 30,000 का 12% सब लोग निकालना विच इज़ कमिंग एज अ 3,600. सो टोटल ये हो गया 33,600, राइट. इसमें से क्या हुआ भैया? 12,000 कैश ऑब्लिक बैंक से हमें इमीडिएटली मिला. सो रेस्ट ऑफ मनी कितना बच रहा है गाइस? 21,600 हम क्या करेंगे? किसको सेल किए हैं? कपिल के अकाउंट को डाल देंगे, राइट. क्यों? इसको हम इतना जो 21,600 है ये क्या है? हमारा क्रेडिट सेल. और ये क्या है? हमारा कैश सेल, राइट. सो लेट्स पास द जर्नल एंट्री गाइस. सिंपल है सेल्स वाला जर्नल एंट्री. दैट क्या क्या करेंगे देखो. अभी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा. कपिल का अकाउंट आपका डेबिट होगा टू सेल टू आउटपुट IGST. कितना है? 12%. तो देखो कैश बैंक कितने से डेबिट होगा? 12,000 से. कपिल का अकाउंट हो जाएगा 21,600 से. सॉरी 21,600 से. और सेल हमने किया है 30,000 का. उस पर GST आया है 3,600. आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू ऑल. कैन आई मूव? चलो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिबेट. ये रिबेट क्या होता है देखते हैं. चलो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. हाँ लिखा हुआ है. देखो देखो कि रिबेट क्या होता है. पहले ही बता दूँ. जनरली रिबेट इज ऑफर्ड for defective goods. You can say defective sale. It is treated like sales return, but goods is not coming back, so it is called as rebate. ये अभी बाद में समझेगा, पहले आप समझो रिबेट क्या होता है. लेट्स अज्यूम करो मैंने एक लाइट परचेज करी है, ठीक है. टू रिकॉर्ड माई ऑनलाइन लेक्चर्स आई हैव परचेज वन लाइट ऑफ ₹10,000. नाउ जैसे ही मैं घर पे आई आई हैव चेक द लाइट इज़ नॉट वर्किंग गुड. ठीक है, मैंने जो लाइट परचेज करी थी दैट लाइट मैंने ऐसे लगा दी एंड इट इज़ नॉट एट ऑल वर्किंग गुड. सो मैंने क्या किया, वो जो दुकान वाले भैया थे उनके पास मैं गई एंड आई टोल्ड हिम कि भैया लाइट इज़ नॉट वर्किंग राइट. ही सेड मैडम
If light is not working good, it is not related, it is not relevant for your online lecture recording. I said yes भैया, I don't want this light. But he said मैडम ठीक है, आपके लेक्चर के रिकॉर्ड करने के लिए लाइट यूज़ नहीं आ रही है, इट्स ओके, बट आप इसको कहीं ना कहीं तो घर में लगाओगे, कहीं ना कहीं तो घर में लगाओगे, अच्छी लगेगी. मैंने कहा ठीक है, मेरे पास भी थे ऑप्शंस, तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकती हूँ, बट आई विल नॉट पे 10,000 फॉर दिस. ही सेड ओके मैडम, दिस लाइट का कॉस्ट इज 10,000 ना. यस, आई सेड यस. ही सेड मैडम गिव मी ओनली 4,000. ओके, व्हाट, गिव मी ओनली 4,000. ही वेव ऑफ दिस 6,000 रुपीज़. उसने क्या किया, ये 6,000 रुपीज़ को वेव ऑफ किया. एंड दिस वेव ऑफ 6,000 जो उसने किया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ रिबेट. गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप डिफेक्टिव गुड्स का सेल करते हो, जैसे इस केस में वो लाइट डिफेक्टिव थी, तब रिबेट ऑफर होता है. सो ये जो 6,000 ऑफ हुए हैं, इसको हम रिबेट बोलते हैं. इट इज जस्ट ट्रीटेड लाइक अ सेल्स रिटर्न. सो सेल्स रिटर्न पे हम कौन सा जीएसटी लगाते हैं, आउटपुट, राइट. तो रिबेट पे भी कौन सा लगाएंगे, आउटपुट. सेल्स रिटर्न की जैसे ही ट्रीट करते हैं, बट इट इज नॉट सेल्स रिटर्न. वाई, सेल्स रिटर्न में गुड्स, एक्चुअल गुड्स आपके प्रीमाइसिस में आते हैं, यहाँ पे एक्चुअल गुड्स आपके प्रीमाइसिस में नहीं आते, बिकॉज दैट लाइट इज विथ मी ओनली. जस्ट I haven't paid 6,000 rupees, but that light is with me, right? So this is called as a rebate. So right, let's see the question. Question says, Kapil was allowed rebate of 5,000 as goods supplied to him were defective. ठीक है? These goods were sold charging IGST 12%. जो हमने कपिल को गुड्स दिए थे, उसमें से 5,000 के गुड्स डिफेक्टिव निकले. मीन्स क्या होगा, हमने कपिल को रिबेट ऑफर किया. तो चलो देखते हैं रिबेट की एंट्री कैसे पास होगी, लाइक अ सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट. तो रिबेट क्या होगा, रिबेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. IGST भी इसके साथ साथ डेबिट होगा. टू क्या हम करेंगे, कपिल, राइट. चलो देखते हैं. अभी वी हैव टू कैलकुलेट रिबेट. 5,000 का 12%. एवरीबडी पुट योर कैलकुलेटर. 5,000 का 12% विच इज कमिंग एज 600. सो हम क्या करेंगे, 5,000, 600, 5,000 एंड 600. आई होप दिस इज ए क्लियर. आपको समझ में आया होगा कि रिबेट का एंट्री कैसे पास करना है. ठीक है. नाउ सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत फॉर ₹1 lakh एट द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड चार्ज IGST 12%. गाइज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रेड डिस्काउंट बाय 1 get 2 फ्री वाला डिस्काउंट होता है, विच इज़ नॉट कमिंग इन द इनवॉइस. अगर ये इनवॉइस में नहीं आता तो ये जर्नल एंट्री में भी नहीं दिखाते, तो हमें GST चार्ज करना पड़ता है आफ्टर डिडक्टिंग वैल्यू ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट. लेट्स सी कैसे. इसका लिस्ट प्राइस गिवन है 1 लाख रुपीज़. ट्रेड डिस्काउंट है एट द रेट 20%. 1 लाख का 20% आता है कुछ 20,000. तो नेट प्राइस कितना हुआ, 80,000. On this net price we are going to calculate IGST at the rate 12%. Everybody please calculate 80,000 का 12% which is 9,600, right. तो ये टोटल वैल्यू हो गया 89,600. कैसे एंट्री पास करेंगे, चलो. नॉर्मल सेल किया है तो क्या करेंगे, मनप्रीत का नाम दिया है, so this is a of course credit sale. So let's pass the entry that Manpreet account debit, Manpreet का account debit to sales to output IGST at the rate 12%. So मनप्रीत का अकाउंट हम डेबिट करेंगे
89,600 से, बिकॉज हमने सेल किया है 80,000 का और 9,600 इज आवर GST, राइट। चलो आगे हो रहा है गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। देखो लिस्ट प्राइस की बात कर रहा है कि हमने गुड्स लिस्ट प्राइस पे बेचे थे, नहीं भैया हमने नेट प्राइस पे बेचे थे। तो गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेट प्राइस निकालेंगे। देखो लिस्ट प्राइस है अपना 20,000, राइट। हमने इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया था, ऊपर देखो 20%। तो एवरीबडी पुट इट ऑन योर कैलकुलेटर गाइस। 20,000 का 20% विच इज़ कमिंग एज अ 4,000, राइट। तो ये 16,000 हो गए। इस पे आएगा आपका IGST एट द रेट 12%। 16,000 का कैलकुलेट करो 12%, विच इज़ 1920, राइट। टोटल आता है 17,920। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, सेल्स रिटर्न की जैसे करते हैं वैसे ही। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा भैया, डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है तो इसके साथ आउटपुट IGST एट द रेट 12% भी क्या होगा, डेबिट। टू किसका करेंगे, मनप्रीत। क्यों, क्योंकि हमने ये गुड्स क्रेडिट पे बेचे थे। तो सेल्स रिटर्न हुआ है 20,000 का, 1920 का GST है, तो टोटल वैल्यू है 17,920। आई होप दिस एंट्री इज ऑल्सो क्लियर गाइज। लास्ट एंट्री पे चलते हैं। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 15,000, चार्ज CGST HGST 6% ईच। चलो कमीशन इज आवर इनकम, सो इनकम इज कमिंग अंडर द बिजनेस। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू कमीशन, राइट। कमीशन एज और इनकम, इनकम इज क्रेडिटेड, इनकम क्रेडिट हो रहा है तो इसके साथ आपका GST भी क्रेडिट होगा। कौन सा है, CGST और HGST। कितना कितना है, एट द रेट 6%, एट द रेट 6% ईच। निकालो सब लोग, कमीशन कितने का है, 15,000 का 6%, 900, तो यहाँ पे आएगा 15,000, यहाँ पे आएगा 900, ये टोटल होता है 16,800। यहाँ पे भी आपका आउटपुट आएगा, राइट। चलो दिस क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी डाउट पुट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल आंसर देम। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। आप एक बार इसका आंसर चेक करना, ICI के आंसर के साथ बिल्कुल मैच करेगा। चलो नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आपका जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट हुआ ना, कौन सा, सितंबर, उसमें ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सिंपल है बहुत। फर्स्ट पार्ट है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल अज्यूमिंग CGST HGST एट द रेट 6% ईच। ठीक है, चलो 6% ईच है, ओके। सोल्ड गुड्स टू मुकेश, मुकेश को सेल किया है, इसका मतलब कौन सा सेल है भैया, क्रेडिट सेल। एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लिस्ट 20% ट्रेड डिस्काउंट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रेड डिस्काउंट नॉट टेकन इन द इनवॉइस, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट हम जर्नल एंट्री में भी नहीं लेते। तो वॉट एवर अमाउंट इज देयर वी यूज टू चार्ज GST आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस गिवन है, लिस्ट प्राइस इज गिवन एज 50,000, राइट। चलो लिस्ट प्राइस 50,000 है और ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। एवरीबडी टेक योर कैलकुलेटर इन हैंड एंड कैलकुलेट 50,000 का 20% विच इज़ कमिंग एज 10,000। नेट प्राइस कितना है गाइज, 40,000। इस पे हम GST चार्ज करेंगे, CGST HGST एट द रेट 6% ईच। तो 40,000 का 6% 2400 पूरा वैल्यू बनेगा
44,800, राइट। सिंपल है, जर्नल एंट्री सिंपल पास होगी। सेल किया है तो सेल क्रेडिट करेंगे, सेल अगर क्रेडिट हो रहा है तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा। तो देखो मुकेश अकाउंट डेबिट, सिंपल मुकेश अकाउंट डेबिट। मुकेश का अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाम दिया है, नथिंग इज मेंशन और मुकेश का नाम दिया है, इसलिए वी आर अज्यूमिंग दिस इज अ क्रेडिट सेल, राइट। मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल किया है 50,000 का, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST @ 6% ईच। कितना है देखो, 2400 2400 2400 2400, इसका टोटल बन रहा था 40,000 है ना ये, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज अ 40,000। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हम वैल्यू लेते हैं 44,800, राइट। आई होप दिस इज अ क्लियर गाइज। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मुकेश, अगेन मुकेश का नाम दिया है, इसका मतलब दिस इज अ क्रेडिट सेल एट लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो 5% कैश डिस्काउंट भी आया है। देखो कैश डिस्काउंट वी यूज टू कैलकुलेट आफ्टर मेकिंग आवर इनवॉइस, राइट, बट गाइस जीएसटी वाले वैल्यू पे हम कैश डिस्काउंट कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। वी यूज टू कैलकुलेट द कैश डिस्काउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट बट एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू। मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ कैलकुलेट कैश डिस्काउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट but never calculate on GST वैल्यू। गाइज आपको GST वैल्यू पे डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करना है। द रीज़न बीइंग इज कैश डिस्काउंट वी यूज टू ऑफर फॉर अर्ली पेमेंट, राइट। एक बार इनवॉइस बन गया, उस पर GST लग गया, देन वी यूज टू ऑफर द कैश डिस्काउंट। बट मुझे एक बात बताना, क्या गवर्नमेंट इसको राज़ी होगा? ऐसे तो सब लोग करेंगे, भैया हमने डिस्काउंट दे दिया, हमारा GST वापस करो। गवर्नमेंट विल नॉट एग्री विद दिस थिंग्स। इसीलिए जो आपका कैश डिस्काउंट होता है वो हम नेट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, बट GST वाले वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है। दे हैव गिवन अस ए लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस है 1 लाख, ठीक है। देन दे गिवन ट्रेड डिस्काउंट एट रेट 20%। 1 लाख का 20% अगर आप निकालते हो तो विच इज़ कमिंग एज ए 20,000। हमारा नेट प्राइस आया, नेट प्राइस इज 80,000, राइट। नाउ गाइज विच फर्स्ट विल कैलकुलेट CGST SGST एट द रेट 6%, राइट। सो कितना है देखो, 80,000 का 6% 4800 एंड नाउ कैश डिस्काउंट वी हैव टू कैलकुलेट। कैश डिस्काउंट कैसे निकलेगा भैया? इस 80,000 का 5%, राइट, विच इज़ 4,000 रुपीज़। तो ये माइनस हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी हुई इनवाइस की? 80,000 प्लस 4800 प्लस 4800 माइनस 4,000, राइट, 85,600। इतना ही पैसा हमें मुकेश से आएगा। बट कैश डिस्काउंट वी नीड टू शो इन जनरल एंट्री। सो हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? देखो यहाँ पे कैसे पास करेंगे, यहाँ पे सब लोग ध्यान देना। मुकेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स,
हमारा सेल्स हुआ है कुछ 80,000 का, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। तो आउटपुट CGST SGST वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड 4,800 4,800, राइट। बट हमें मुकेश से पैसा कितना मिला, हमें मुकेश से पैसा कितना मिला विच आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर कि 85,600। तो बाकी 4,000 क्या है गाइस, 85,600 मिल रहा है, तो बाकी 4,000 क्या है, कैश डिस्काउंट। आई होप दिस इज क्लियर। 85,600, आई होप दिस इज क्लियर गाइज। आपको समझ में आया होगा कि कैश डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट है, देखो आप ICI का भी आंसर चेक करो। डिस्काउंट, बैंक, सेल्स, आउटपुट CGST, आउटपुट HGST। नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लिस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव बाय चेक। देखो क्या क्या बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है। सबसे पहले तो कैलकुलेशंस को करते हैं, चलो करते हैं एक बार। क्या बोल रहा है देखो, लिस्ट प्राइस है, गुड्स की लिस्ट प्राइस गिवन है 1,50,000, उसमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट है 20% है, यस 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे, एवरीबडी पुट ऑन कैलकुलेटर, 1,50,000 का 20% विच इज़ कमिंग एज अ 30,000। एज वी ऑलरेडी नो, वी यूज टू कैलकुलेट आवर GST ऑन नेट प्राइस, सो लेट कैलकुलेट द GST, CGST at the rate 6%, SGST at the rate 6%. So 1,20,000 का 6% which is coming as a 7,200 7,200। तो टोटल कितना हुआ इनवॉइस का, देखो 7,200 प्लस 7,200 प्लस 1,20,000 विच इज 1,34,400। मैं कुछ भूल रही हूँ क्या, नहीं ना, एक मिनट, 134 सही है। चलो अब वो बोल रहा है आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, ठीक है। इसमें से 60% आ गई, 60% रिसीव्ड, मतलब 40% स्टिल रिसीवेबल, 40% is still receivable, right? 60% रिसीव, दैट मीन्स कि 40% इज स्टिल रिसीवेबल। चलो कैलकुलेट करो सब लोग, इसका 60% होता है 80,640 और इसका 40% होता है विच इज़ 53,760। ये तो हम डेफिनेटली मुकेश के अकाउंट को डालेंगे। और वो क्या बोल रहा है देखो, जो अमाउंट रिसीव हुई 60%, ये जो 60% रिसीव हुई है, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव बाय चेक, 3/4 इज रिसीव बाय चेक। इसका मतलब 1/4 कैसे आई होगी, ऑफ कोर्स कैश में आई होगी। तो 3/4 कैसे आई, चेक से आई, मतलब बैंक से आई। तो 1/4 कैसे आई, कैश में आई, ऑफ कोर्स। तो देखो करो सब लोग, 80,640 का 3/4 अगर आप करोगे तो आता है 60,480, माइनस करो आप 80,640, ये आता है कुछ 20,160। देखो गाइज मैं फिर से बता रही हूँ क्या हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लिस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, वी ऑलरेडी नो कि GST जो भी कैलकुलेट होगा आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट ही कैलकुलेट होगा। वो बोल रहा है आउट ऑफ विच अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव। देखो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि देखो लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट है, नेट प्राइस है, GST हमने चार्ज किया, टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई 134,400।
उसके आगे आपको क्लियर है कि 60% रिसीव्ड हो गई। इसका मतलब जेन्युइन हम क्या लगाएंगे भैया, 40% अभी भी आनी बाकी है, जो कि मुकेश के अकाउंट को हम डालेंगे, राइट। वो इस 60% की बात कर रहा है, वो बोल रहा है जो 60% रिसीव हुई ना, मतलब ये 80,640, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव बाय चेक, उसमें से 3/4 चेक से आई, मतलब बाकी 1/4 कैसे आई, कैश से आई। तो हम जर्नल क्या पास करेंगे, सिंपल जर्नल है, देखो मुकेश के अकाउंट को हम डालेंगे कुछ, मुकेश अकाउंट डेबिट करेंगे, हमें कुछ पैसा कैश में मिला तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, हमें कुछ पैसा बैंक से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू सेल्स, राइट, टू आउटपुट CGST @6%, टू आउटपुट SGST @6%। सबसे पहले तो देख लेते हैं हमने सेल कितने का किया भैया, 1,20,000 का सेल किया, जिसपे 7,200 का GST लगा है। तो 1,20,000 का सेल, 7,200 का GST। अभी मुकेश के अकाउंट में रिसीवेबल कितनी है, 53,760 अभी आना बाकी है, राइट। तो कैश अकाउंट से कितना आया, देखो कैश में मुझे मिला 20,160 और चेक से मिला 60,480, 60,480 और 20,160, आई होप 160 ही है ये, राइट। सो ऐसे इसका जर्नल एंट्री पास होगा, एक बार सब लोग देख लेना। आई होप ये क्लियर होगा गाइज आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आओ। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी पीजी था, आप कर लेना। सेकंड में देखो जल्दी जल्दी बताती हूँ क्या क्या जर्नल एंट्री पास होगी। फर्स्ट है, वो बोल रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स, ठीक है। एम्प्लॉय हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ ₹1 लाख, ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस गिवन है 75,000 ऑन द ईवा ऑफ दीपावली एंड द सेम वॉज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरीज इन द सब्सिक्वेंट मंथ। देखो क्या हुआ, मेरा बिजनेस है मिठाई का, ठीक है। आई हैव बिजनेस ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग। ऑन द ईवा ऑफ दीपावली some employee came and told me, madam, we need a sweets from our shop. I said okay, लेके जाओ। बोले मैडम बट पैसा आप हमारी सैलरी से नेक्स्ट मंथ में काट लेना, ठीक है। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो मुझे एक बात बताना, ये जो भी इन्वेंट्री वो ले रहे क्या इन द फॉर्म ऑफ सैलरी ले रहे? हाँ ऑफ कोर्स। तो मेरे बिजनेस से क्या जा रही है, सैलरी जा रही है। और मुझे एक बात बता, क्या अननेसेसरी मैं सेलिंग प्राइस पे इसको क्यों रिकॉर्ड करूँ? मुझे तो कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे। इसीलिए मैं जर्नल एंट्री पास करूँगी दैट की सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। क्यों भाई, मेरे बिजनेस की इन्वेंट्री जा रही है, कितने की, ऑन कॉस्ट ओनली, राइट गाइस। नेक्स्ट है वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 18,000। सिंपल है भैया, वेजेस पे किए, इरेक्शन करना मतलब इंस्टॉलेशन करना मशीनरी का। तो टिल दैट मशीनरी, इफ यू रिमेंबर आवर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस वाला टॉपिक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, till that machinery become ready to use, whatever expenses we are doing it will be capitalized. So हमने wages पे करे तो ये इसका एंट्री क्या पास होना चाहिए? जनरली आप पास करोगे wages to cash, बट wages to cash नहीं होगा। क्या होगा भैया, मशीनरी में कैपिटलाइज होगा, इसीलिए हम पास करेंगे दैट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, राइट। कितने का, 18,000, राइट। नेक्स्ट है इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 17,000 वॉज पेड ऑफ पीटी कैश। पीटी कैश से इनकम टैक्स लायबिलिटी पे करी। अगर ये ओनर का खुद का खर्चा है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे, ओह शिट, एक मिनट में कहाँ पे आ गई, एक सेकेंड देना मुझे, थोड़ा सा नीचे आ गई मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसका जर्नल क्या पास करेंगे,
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये बहुत ही बड़ा हो रहा है पेन, एक सेकेंड। ड्राइंग्स डेबिट टू पेटी कैश, भैया कितने का? 17,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख, ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 कैश डिस्काउंट वॉज अलाउ फॉर क्विक पेमेंट। नो प्रॉब्लम गाइज, परचेस है, खर्चा है, नॉर्मल एंट्री पास करेंगे हम। क्या करेंगे सब लोग बताना। परचेस किया है 2 लाख का, चलो सबसे पहले तो निकालते हैं। लिस्ट प्राइस है अपना 2 लाख, राइट, और क्या है 10% ट्रेड डिस्काउंट। वी ऑलरेडी नो हम ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, तो सबसे पहले तो इसको हटा देंगे, विच इज़ कमिंग एज ए 20,000। 1,80,000 का गुड्स क्या है परचेस हुआ, उसमें भी कैश डिस्काउंट ऑफर किया है कितना? 5,000 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो नवीन से परचेस किया, तो आप परचेस की एंट्री क्या डालोगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू नवीन। सबसे पहले एंट्री डलेगी दैट परचेस अकाउंट डेबिट टू नवीन, कितने की? 1,80,000, 1,80,000, राइट। नाउ उसने पेमेंट कर दिया, इसलिए हमने उसको 5,000 का डिस्काउंट ऑफर किया है। तो गाइज क्या नवीन से हमें पैसा आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, बट कितना आ रहा है भैया? आप बोलोगे मैडम 5,000 कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 1,75,000 से करेंगे। बाकी बचा क्या है? डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट, राइट। 5,000 नवीन का अकाउंट क्रेडिट हुआ था। सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी, एक सेकेंड। अरे हमने नवीन को बेचा है, सॉरी नवीन से ख़रीदा है, तो हमारे पास से पैसा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा नवीन अकाउंट डेबिट, कितने से? 180 से, राइट। टू बैंक कितने दिए हमने? 1,75,000। टू कैश डिस्काउंट 5,000। सिंपल है, वेरी सिंपल। चलो ये आपका होमवर्क दिया था, ये भी होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बोल रहा है फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी pertaining to year ended 31st March 2022, find the unknowns, show computation to support your answer। ठीक है, हमें अननोन फाइंड करना है। देखो ये सब दिया है, मशीनरी है, ओके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है देखो, वो बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ 15,55,000 वॉज मेड, ठीक है, ऑफ विच 15,000 हैज़ बीन रिसीव्ड। हमने सेल्स करे थे 15,55,000 के, उसमें से मनी रिसीव्ड कितना है? पैसा आ गया कितना भैया? 15 लाख का। तो कितना नहीं आया? 55,000 का। ये क्या होंगे? आपके डेटर्स होंगे, जिसको हम बोलेंगे रिसीवेबल्स, राइट गाइस। सिंपल है। चलो क्वेश्चन में आते हैं। देखो आपको रिसीवेबल निकालने बोल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेट। आपके निकल गए क्या? जी हाँ निकल गए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी हमारे 55,000 तो निकल गए, राइट गाइस। चलो अब बोल रहा है वो आपको यहाँ पे निकालना है कैश। कैसे निकलेगा देखो, क्या आपको दिख रहा है क्या? सारी की सारी एसेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। मशीनरी एसेट है ना, एसेट है। अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी है, इन्वेंट्री एसेट है। टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, अरे टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल मतलब इन्होंने क्या किया है, ये आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड का यहाँ का टोटल दे दिया है कितना? 14,15,000, राइट। 14,15,000। मुझे एक बात बताना, क्या लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है क्या? अगर ये टोटल 14,15,000 है तो ये भी कितना होना चाहिए? सिमिलर, राइट गाइस। चलो देन कैश क्या है? एसेट है। बैंक क्या है? एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल आपकी एसेट है। लोन्स क्या है? लायबिलिटी। कैपिटल लायबिलिटी। ओपनिंग कैपिटल लायबिलिटी। लॉस इनकर्ड, ये लॉसेस है, बट हम इसको कहाँ से माइनस करेंगे? कैपिटल में से इसको माइनस करेंगे, राइट। और कैपिटल ये भी लायबिलिटी है। चलो
एज वी ऑल नो गाइस, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो मुझे बताओ क्या कैश आपका आराम से आएगा क्या? कैसे आएगा देखते हैं। चलो, टोटल लाइबिलिटीज़ देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है। टोटल लाइबिलिटीज़ है 14,15,000 की, राइट। उसमें से क्या क्या माइनस करना होगा? सबसे पहले तो मशीनरी को माइनस करो। चलो कर दिया। देन अकाउंट्स पेएबल माइनस नहीं होगा क्योंकि लाइबिलिटी है। इन्वेंट्री को माइनस करो, कर दिया। देन कैश को अब निकालना है, बैंक को माइनस करो, और देन रिसीवेबल्स को माइनस करो, हमारा जो आया था। अगर आप ये माइनस करोगे तो आपका आंसर आता है 20,000। तो मुझे एक बात बताना, आप क्या कैश आ गई क्या? 20,000 की कैश भी आ गई, राइट। चलो नाउ गाइज, यहाँ पे कंपनी को कुछ लॉस भी हुआ है और आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? हम क्या करते हैं देखो, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर कुछ लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं, और अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं। यहाँ पे लॉस हुआ है तो देखो आपका ओपनिंग कैपिटल गिवन है 10 लाख, है ना। 10 लाख का ओपनिंग कैपिटल है। लॉसेस हुआ 35,000 का, उसको हम माइनस करेंगे। और आपने नया लाया, न्यू इंट्रोड्यूस, ऑफकोर्स प्लस होगा, 1 लाख का प्लस हुआ तो आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आया कितना? 10,65,000, राइट। तो यहाँ पे आया आपका 10,65,000। नाउ गाइज वी ऑल नो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, राइट। यहाँ पे होती किचड़ी हो गया, रुक जाओ। वी ऑल नो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। आपके पास लाइबिलिटी की टोटल है क्या? 14,15,000 है। उसमें से आपकी क्या क्या लाइबिलिटी है? सबसे पहले तो कैपिटल, कौन सा लोगे? क्लोजिंग, ऑफ कोर्स। कितना आया? 10,65,000 को माइनस करो। उसमें से और क्या माइनस होगा? अकाउंट्स पेएबल, कितने के हैं? 1 लाख के, माइनस करो। और क्या माइनस होगा आपका? ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दिया। और कुछ है क्या लाइबिलिटी में? कुछ नहीं है। देखो आपका ये आएगा लोन्स, कितना आता है सब लोग चेक करके बताना, ये आपके लिए आंसर निकालना रहेगा। आई होप सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा, विच इज़ कमिंग एज ए 2,50,000। आपका लोन्स भी आ गया 2,50,000। सारे के सारे मिक्सिंग फिगर्स हमने निकाल दिए, राइट। चलो दैट्स इज गाइज। ये तो मुझे लगता है नॉर्मल जर्नल एंट्री है, परचेज, सेल। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई एम रेडी। थैंक यू सो मच गाइज। विल स्टार्ट नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर, विल स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक, दैट इज योर, कौन सा है आपका? नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, आई गेस, है ना। सॉरी ना, लेजर से नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, राइट। थैंक यू गाइज, गुड बाय।